Now, Prakash, recording is started. Okay, हाँ. So, Prakash, we will discuss. Is that screen is visible to you? No, not it. Wait, just a minute. Might be now you can see Yes, my please. screen. Yes, not visible. Okay. So, today we will discuss some basics about the machine learnings and what are the steps involved to perform the prediction using machine learnings. So I have prepared few slides, है ना? So one by one I will just explain. And today we will focus more on regression based analysis, and then in latter part we will discuss about the classification based problems. So this is just a outline for today's presentation. We will start with machine learning and then different types of machine learning. Actually, these are the interview questions you may see or you may find when you will give the interview. What do you mean by supervised? What do you mean by unsupervised? What is the meaning of semi supervised machine learning? So we will see all those things one by one. So after the types of machine learning, we will see what are the different data science project steps. Once you know all the data science project steps for the prediction, then same steps you have to apply for your all machine learning algorithms, whether you are solving regression based problem or whether you are solving classification based problem. Same kind of steps you have to follow to perform the prediction. And then we will see some examples based on the linear regression. So so this is just a diagram which I have taken from the internet directly. So there is one branch that is called as artificial intelligence, and which is nothing but enables the machines to mimic the human behavior. So machine learning is a sub part of your artificial intelligence. And then again we have one big topic, that is a deep learning, that is again a sub part of your machine learning uh, machine learning part. So if someone asks you what do you mean by machine learning, so the first thing that you should tell that it's a sub part of your artificial intelligence. The second point that you have to tell about that, the models that we are using or algorithms that we will going to use in machine learning, we will train those model and then machine will going to predict whatever the prediction you want to do it. So the second thing in machine learning, that you have models, or you can say different algorithms. We have different algorithms, and then we just train those algorithms, and then after training we just test it. And then once you do the training and testing of those algorithm, then you can use those model for the prediction purpose. So this is the simple use of machine learning algorithm. So basically, we will use machine learning for the different application and for the prediction purpose. We will see one by one, and then we have a deep learning. So actually, deep learning is now a very booming, or we can say uh, a very vast topic, and it's again we can use a lot of data to train those machine learning models or deep learning models. For example, the slight difference between deep learning and machine learning is that डीप लर्निंग के जो मॉडल रहेंगे प्रकाश, टू ट्रेन दोज मॉडल, if you are using this deep learning concept, so then to train those deep learning models you will require big amount of data. So that is the first thing. And then this particular models will perform
will perform well when we have large data set. Large data set. But if you take the example of machine learning, so we can in this machine learning, we can train ML models, ML models using small data set as well. Small data sets as well. So this is the big difference. So in machine learning, we will see what are the different algorithms are available. In deep learning, as we proceed, we will see what is the use of deep learning and how we can use it. So to just So Manish, one just question. So as you were uh, telling, deep learning and machine learning both are same. Only thing is that we need a vast data. फिर yes, वॉच डेटा लगता है वहाँ पे तो मतलब बट कंसेप्ट विल बी सेम द concept will अप्रोच be same, and the thing is that I will just draw one diagram for you. So for example, if this is your data set, है ना, ओके so deep learning model will perform very nice ओके when your data set is very high. But if you take the machine learning model, then they can't perform well. The one reason behind is that the because deep learning model required टेक्नोलॉजिकल थिंग्स मतलब जो मॉडल रहेगा सो एज टेक्नोलॉजी ग्रोथ्स सो वी हैव ample amount of data, so because of that reason deep learning model performs when you are having a big data set. बट अगर तुम मशीन लर्निंग के बारे में बात करोगे तो देन मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स है वो भी स्पेसिफिकली स्मॉल डेटा सेट के ऊपर भी अच्छे से काम करते हैं. दूसरी बात ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन डीप लर्निंग यू हैव basically three different algorithms. For example, one is called as ANN, that is artificial neural network. सो ह्यूमन बॉडी में जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो जिस तरह से बिहेवियर करते हैं, सो डीप लर्निंग में भी जो मतलब दैट इज अ न्यूरल नेटवर्क बेस्ड जो कंसेप्ट आया है वो दैट इज फ्रॉम द ह्यूमन साइकोलॉजिकल न्यूरॉन्स. सो दिस पर्टिकुलर algorithm is suited for tabular data set. टेबलर मतलब रो कॉलम एंड एक्स में कॉलम एंड रोज में जो भी डेटा रहेगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज, और उसको बोलते हैं हम लोग सिक्वेंशियल डेटा. सो दिस ANN algorithm is completely suitable for the tabular data set. The second algorithm that we have, that is called as a CNN, convolutional neural network. So this data set will be very good when your input is images or your videos. But if you consider these machine learning algorithms, then I don't think so there is any machine learning algorithm which can work on images or videos. But ओके in case of deep learning, so we have some models which can perfectly work on images and videos. And then we have one again machine learning deep learning algorithm that is called as RNN, recurrent neural network, where the input should be you can apply your input as a text. So the good example about this one is जो हम लोगों का ये नहीं रहता है क्या, जब हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन. ओके So that is the best application of your deep learning and comes under the RNN. आ रहा है So but so these are the different three algorithms that are present in a deep learning, है ना. सो मैंने कहा कि ANN में आपको टेबुलर डेटा लगेगा, देन CNN जो वर्क करेगा दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द इमेजेस एंड वीडियोस.
और जो RNN है वहाँ पे आप लोग टेक्सचुअल डेटा भी एज ए इनपुट दे सकते हो। लेकिन ये सारे केसेस जो है वो मशीन लर्निंग में यूज नहीं कर सकते हम लोग। मशीन लर्निंग इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड अबाउट योर व्हाट, कि यू हैव अ टेबुलर डेटा ओनली। टेबुलर मतलब क्या रहेगा कि न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको डेटा लगेगा, उसी को लेके आपको मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, एंड देन दैट मॉडल विल बी यूज फॉर द प्रिडिक्शन पर्पज। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस विच आई नो लिटिल बिट अबाउट दिस machine learning and deep learning. Is it fine? ओके फाइन। सो क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स है वो लो डेटा सेट रहेगा तो भी उसके ऊपर अच्छे से परफॉर्म कर देंगे। डीप लर्निंग के भी करेंगे, लेकिन डीप लर्निंग का परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगा कब मिलेगा, जब यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट। और डीप लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम हमारे पास में अवेलेबल है जो कि आपके इमेजेस के ऊपर और वीडियोस के ऊपर भी काम करेंगे, आपके टेक्स्ट के ऊपर भी काम करेंगे, एंड दैट फैसिलिटी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स विल नॉट प्रोवाइड टू अस। So this is a basic difference that we have in machine learning and deep learning. Is it fine? फाइन। Yes or Samadhan hai? Is हाँ it हाँ हाँ, okay? इट्स ओके ओके। Okay. In machine learning, what we will do, what we used to do is that we have a model, then you have to train that particular model, and once you train that model, then use a testing data set to do the prediction purpose, or whether your model is performing well or not. Then we will have a different machine learning, or we can say types of machine learning. So interviewer may ask you, do you know about the different machine learning types? So the first important type is supervised machine learning. We will see what do you mean by supervised. Then you will have unsupervised machine learning, and then we have semi-supervised machine learning model. So in a supervised machine learning model, again we have a regression based supervised machine learning model, and then we have classification based supervised machine learning model. So we'll see in depth what do you mean by supervised, unsupervised, and semi-supervised. So supervised means, I will just let you know. Supervised means we have a labeled data. Labeled data means what? For example, here we have CGPA, and here we have uh, whether that person or that student, or here you can say lakh per annum. That is a package we can say. So this is your X and this is your Y. So for example, if we are having CGPA 6.8, so that fellow will get, for example, 7 lakh rupees. If your CGPA is 9, then that fellow will get 20 lakhs rupees. If your CGPA is 5, that fellow will get 6 lakh rupees. So for every input, you have one labeled output. So that is called as a supervised machine learning model. What I said, for every input, we have a labeled output. That is nothing but your supervised machine learning model. And this data is a continuous, that data present in a continuous form, which is again the characteristics of your supervised machine learning model. So the first thing that you should remember about the supervised machine learning model is the data set is a labeled data set. For example, for every X, we have a Y value. And that Y value, this is your Y value. And this particular Y value is nothing but your what? A continuous data points. So this is called as a supervised machine learning model. In that supervised machine learning model, you have two different categories. One is called as a regression, and second one is called as a classification. So what do you mean by regression? So for example, in a regression, you have X here
and this is your y, for example. So there is a linear relationship between your x and y. So that is called as your regression based analysis or regression based supervised machine learning model. And you can easily compute your y by using y equals to mx plus c, that is your straight line equation. So when you find this kind of relation, then you can say that your model is a regression based supervised machine learning model. Is it fine? Okay, it's fine. Then the next we have, for example, the next we have classification based machine learning model. So what it means, classification means what? For example, we have a one model. I don't know. This is a list. Let assume this is your machine learning model. Here you have a three different inputs. Let us assume this is your cat. Then this is your dog, and this is your, for example, mouse. And then you just give those inputs to your machine learning model. Then what machine learning model will do? Machine learning model will classify all those things and predict accordingly. So machine learning model will classify what cat separately, then dog separately, and then mouse separately. And if you apply, once you train your machine learning model, and if you just here give a image of your cat, or you can say this is a cat, so in that case it will, so this machine learning model what will do? This machine learning model will classify and let you know. So whatever the input that you have given, that is your cat. So classification is nothing but this kind of scenario where you are just separating or classifying your input model, input features. Is it fine? It's fine. Okay, we will see some examples also. Then the next question may interviewer ask you. In last interview, they asked me, what do you mean by unsupervised machine learning model? So unsupervised machine learning model means you don't have any label output. We have a just cat, dog, or this kind of data set, and then machine learning model will itself learn based on the input size or based on the input. वो खुद ही लर्न करेगा और खुद ही क्या कर देगा, इसको खुद ही क्लासिफाई कर देगा कि दिस इज योर कैट एंड दिस इज योर डॉग. सो व्हेन यू डोंट हैव अ लेबल डेटा सेट, that kind of machine learning model is called as an unsupervised machine learning model. So the point that you should remember about unsupervised machine learning model is that when we don't have a label data set, है ना, and model itself classify based on the input history, so this kind of model will be called as unsupervised machine learning models. And then we have a semi-supervised machine learning model. So semi-supervised, the best example of semi-supervised machine learning model is when you open, for example, Amazon account. So initial information you have to fade. For example, your name, your mobile number, all those things, that information that you have to fade, that is your supervised machine learning. And once you fed your information, then based on your choices, for example, अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर तुम जाते हो, तो एक बार अगर तुमने कुछ सर्च कर लिया इमेज या कोई मूवी के लिए, तो वो आपको क्या करते रहेगा, वो उसी टाइप की मूवीज आपको रिकमेंडेड करते रहेगा. So that is called as your semi supervised machine learning model. Partial information you have to fed. Once you fed your information, then based on that information, model will suggest you accordingly. So that kind of models will be, or algorithms will be called as semi supervised machine learning model. So the three different model: supervised, unsupervised and semi supervised. सुपरवाइज में दो टाइप है हम लोगों के, रिग्रेशन एज वेल एज क्लासिफिकेशन. This unsupervised machine learning model, we don't have any label data set. This particularly unsupervised machine learning we are used for clustering. This is the application of your unsupervised. Clustering means what? You are just clustering. For example, this is your cat, this is your dog, now this is your mouse. You are just clustering, you are classifying based on the
your input data set. So that is the application of your unsupervised machine learning. And then we have a semi supervised, where initial information you have to feed, and then based on that information, model will recommended you. So these are the basic three different types of your machine learning models. Is it fine? It's fine. So we will see some examples. Sham, just give me a 1 minute. Prakash. Are you hearing me, Prakash, clearly? My Yes, voice yes, is yes. audible. Yeah, yeah, you are audible, and I think Screen? Screen is screen is visible? also visible. Her screen is also Okay. visible. Okay, okay, okay. So that today, as I mentioned, that we will focus on supervised machine learning models only. So here, as I mentioned, if we are having a labeled data set, then you will call that algorithm or that type of machine learning is a supervised machine learning. So, for example, I have taken one example from our project itself that you know very well. So, for example, if we are having the x as a ECL intensity, and with respect to every intensity value, if you have a concentration, for example, uh, this is the concentration of glucose that we are predicting. My goal is to predict the concentration of glucose in human body. But for each concentration, if you have some light intensity value, which means that this is your a labeled data set. We have a labeled data set. For every intensity value, you may find one particular value of your glucose concentration. So that's why it is called as your what, labeled data Uh, set, and Label it which comes under comes under the category of your what, supervised supervised ML. machine learning model. Is it fine? It is fine. Hmm. So here, as you can see, so for example, if this is your concentration you want to predict, and the value of concentration is completely depends on the ECL intensity value, or we can just say the intensity value. But here x, for example, y equals to mx plus c. So this is the straight line equation. Here x is only one. Here the input feature x value, or you can say the intensity value, we are considering sorry, the concentration of glucose, which is completely dependent on the intensity value only, which means that the feature or the x is nothing but your only, or only one feature we are considering. But we have a multiple regression model as well. Multiple linear regression means what, where y is depend on mx1 m1x1 plus m2x2 plus m3x3 and then plus c. So which x1, x2 and x3 stands for three different features, and based on these three different features you will get the value of your y. So this is the example of your multiple linear regression model.
Is it fine? Fine, fine. Sorry. So this is the example of your supervised machine learning, where we have only one input, and depend on that one input, you have your label output. So next, for example, so here X, or you can say only one input feature we have considered to predict the value of glucose concentration. But here the package of your student is depend on CGPA as well as your IQ. So the equation that you will get here, for example, lakh per annum will be equals to, this is nothing but your Y. Then we have equation M1 X1 plus M2 X2 plus C. So here X1 is nothing but your CGPA, and X2 is nothing but your IQ, and C that you have to calculate. So the thing is that this kind of problem will be called as multiple linear regression problem, where you have more than one input feature or input columns, and on the basis of those columns, the value of your dependent variable is dependent, or the value of your Y is dependent on those multiple input feature. So this kind of scenario, or this kind of regression model will be called as multiple linear regression model. This will be your what? Simple Simple regression. linear regression model. Is that clear? Clear. Yes. So, and as I mentioned that this is a labeled data, but this is a continuous data as well. So when you are having a continuous data and labeled data set, that kind, or this scenario you will call as a supervised machine learning. And these are the examples of regression based analysis. Why regression based analysis? Because you have a continuous data set. But when you don't have a continuous data set, अगर आपका जो आउटपुट है वो सिर्फ आपका यस और नो में अगर प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल, in that case you can see here we have a CGPA, here you have a IQ, and here we have a placement, whether that student will get a placement or not. So for example, if your CGPA is 7.1 and here IQ level is 87 is given, this Y stand for yes, so which means that that student will get placement. And some conditions will be there, for example, CGPA is 5.8, IQ level is this much, so that student will not get placement. So which means that when your data is in binary form, it is not compulsory, it is a binary only, there are more than two classification levels as well. But the thing is that when you have output or dependent variable in the form of yes or no, or in the form of classification, or you can say that particular model will be called as classification. When you have a categorical data set at output, वो हमने एग्जांपल देखा ना, डॉग, हाँ. कैट, Yes. है ना, माउस. So this is nothing but your categorical data. So here we don't consider, we are not concerned about how much package that student is getting. We are concerned about whether that student will get placement, yes or no, है ना. So when we have a categorical data, then we will call that model will be called as
classification based regression machine learning model. I hope you got the point. Yes, yes, got it. So you just need to keep in mind that in a supervised machine learning model, we have two different categories. One is called as a regression and one is called as a classification. So regression में क्या होगा? Regression में आपका जो output data रहेगा, that is in continuous form. And in classification में क्या होगा? जो data set रहेगा आपका, that will be in a categorical form. Is it fine? It's fine with me. Okay. So in a regression, we have different machine learning models that we will see one by one. And in classification also, we have different machine learning models and different techniques that we will see one by one. I will take each and every one. So this is all about the, because we mainly focus on whatever the, मतलब जो भी हम experimentation part देखने वाले हैं प्रकाश, जो भी experiment तुम आपने भी perform किए और जो हमने भी किए, so whatever the paper we have published on that data set, that is completely based on the regression based machine learning models only. So हम लोग उसको in depth में देखेंगे. Till this point, any doubt? So we No doubt. started with the introduction to the machine learning, where we just introduce about the machine learning and deep learning. So machine learning में क्या करते हैं भाई हम लोग? Machine learning में हम लोग एक मॉडल रहेगा आपको, उसको आप क्या करोगे? ट्रेन करोगे, फिर एक टेस्टिंग डेटा सेट रहेगा आपका, और टेस्टिंग डेटा सेट से आप यहाँ पे प्रिडिक्शन परफॉर्म करोगे. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं उसको. सो मशीन लर्निंग मॉडल विल परफॉर्म अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, है ना. दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये आपका लो डेटा सेट भी रहेगा और मिनिमम डेटा सेट के ऊपर भी आपका मशीन लर्निंग अच्छे से काम करेगा, है ना. बट Yes. डीप लर्निंग के केस में वो पॉसिबल नहीं है. डीप लर्निंग के मॉडल परफॉर्म तभी अच्छा करते हैं व्हेन यू हैव अ लार्ज डेटा सेट, है ना. और उसके बाद में आपके मशीन लर्निंग की जो मॉडल्स है, दे विल नॉट परफॉर्म ऑन इमेजेस और वीडियोस और टेक्सचुअल डेटा सेट. But this deep learning, for example, we have artificial neural network. Deep learning model uses artificial neural network, or you can say neural network they are using. So ANN आपका एक algorithm है जो आपका sequential डेटा सेट के ऊपर अच्छे से काम करेगा. Then we have a convolutional neural network which can very clearly or effectively work on your images as well as your videos. And then we have RNN, recurrent neural network, which we can effectively work on your textual data, है ना. So these are the points that you have to or you should remember regarding machine learning as well as deep learning. Then we have seen, then just a minute. Then we have seen the different types of machine learning algorithms: supervised, unsupervised, and supervised. In supervised, we have two: regression as well as classification. है ना? Regression means what? We have a continuous data, and in classification, we have a categorical data. है ना? And in unsupervised machine learning model, we don't have a label data. लेबल डेटा सेट यहाँ पे नहीं रहेगा. एंड दिस अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल वी कैन जनरली यूज फॉर क्लस्टरिंग. वी आर यूजिंग फॉर क्लस्टरिंग पर्पज. इज इट फाइन? Fine. यस और नो? Yes, yes, fine with me. Okay, so now we will move, we will see the different now we will see different data science project steps. So if you follow this particular steps, तो आपका मशीन लर्निंग का कोई भी अल्गोरिदम या कुछ भी आपको करना है तो यू कैन जस्ट फॉलो दो स्टेप्स फॉर द प्रेडिक्शन पर्पज, फॉर सेम स्टेप फॉर डिफरेंट अल्गोरिदम्स. उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी इंपोर्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज. तो सबसे पहला आप
आपकी जो लाइब्रेरी रहेगी, एक numpy करके लाइब्रेरी है, दैट यू हैव टू इंपोर्ट. numpy लाइब्रेरी हम लोग किस किस चीज के लिए यूज करते हैं? इफ यू वांट टू डू सम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, देन यू हैव टू यूज अ वन library which is called as a numpy library. So these are the functions performed by the your numpy library. Then the second library is important library, that is pandas. Might be you have completed the lectures over pandas library. So जो भी आपका एक्सेल शीट रहेगा, जो भी आपका डेटा रहेगा, वो तो एक्सेल शीट में रहेगा या तो सीएसवी फाइल में रहेगा. तो आप डायरेक्टली सीएसवी या एक्सेल फाइल के ऊपर काम नहीं कर पाओगे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सीएसवी फाइल या एक्सेल फाइल को यू हैव टू इंपोर्ट दैट फाइल, create a data frame. Once you create a data frame, then you can perform n number of operations over that particular data frame. So that particular thing will be done by or taken care by the pandas only. Is it fine? It is fine, correct. So these are the function, you just go through it. Those will be performed by the pandas library. Then another library you should have, that is a matplotlib library. So whatever the graphical, whatever the graphs you want to plot, then all those graphs will be plot with the help of this matplotlib library. Again, I have mentioned few of the functions provided by this matplotlib library. We have to use that library in every machine learning algorithm, or every algorithm, or every coding. Then again we have a Seaborn library, that is again we can use for the to find out the relation between independent and dependent variables, to plot the graphs. We can use this Seaborn library. We will take example when we will solve the or we will see the coding. At that time we will explain what is the use of those all libraries. Again, I have mentioned few of the functions of Seaborn library here. Then apart from that, we have to use these many libraries. So the first important library is about the train test split. This is a very important, and you may expect the questions on this particular library. So these are all from the scikit-learn, sklearn. So this train test split, what it do, what this library performs. So the name suggests train, means if you want to perform the prediction using your machine learning algorithm, then the first and foremost thing is that you have to train your model. Once you train your model, then you have to test your model, whether your model is performing well or not, whether the model is giving prediction correctly or not. So for that purpose, we have to use one library that is called as a train test split. What that library will do, I have prepared a one complete slide on that particular uh, uh, library only. So we will see the function of train test and split, what it do. Then for example, if you want to use a linear regression, then you have to use this particular library from sklearn. If you want to use a knn algorithm, that is k nearest neighbor algorithm, so that time you have to use this particular library from sklearn. If you want to use gradient boost algorithm, so these are different algorithms. We will see one by one. We will start with only one regression based, we will do a one regression based analysis, and then in that code itself, मतलब एक ही कोड में आप ये सारे algorithm यूज करके आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आई वुड जस्ट लाइक टू नो यू दैट these are the library which are associated with particular algorithm. For example, if you want to do a prediction using linear regression analysis or linear regression based machine learning model, तो आपको ये linear regression वाला यूज करना पड़ेगा. विदाउट दैट यू कांट डू द प्रिडिक्शन. उसी तरह से आपको KNN algorithm से अगर प्रिडिक्शन करना है, तो देन यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर library which is present in Python.
Similarly, for gradient boost, you have to use this particular. So these are the different algorithms that I have used in my project. That's why, apart from that, also there are n number of algorithms and libraries are associated with them. But most commonly used algorithms are those algorithms. Then we have a support vector regression, and then we have a decision tree. We have a random forest. So just remember that here they have specifically use regressor word. So which means that all those algorithms we are using for regression based analysis. If you want to use those algorithms, because there are, except this linear regression, rest all the models you can use for classification as well. So here you will get only, you will just replace that regressor with classification. समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ प्रकाश? हाँ ठीक है, ओके। Okay. Then the next important is that, for example, now you have a data set. देन आपने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, सारा कोड लिख लिया, सब कुछ कर लिया, और आप प्रिडिक्शन भी कर रहे हो तुम मॉडल का यूज करके, है ना? आप प्रिडिक्शन कर लिया, लेकिन अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा मॉडल जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो सही में सही प्रिडिक्शन करवा के दे रहा है या रॉन्ग प्रिडिक्शन करवा के दे रहा है? तो उसके तो कुछ पैरामीटर हमें देखना पड़ेगा ना, कि ऑन विच बेसिस यू आर सेइंग दैट द प्रिडिक्शन डन बाय योर मॉडल इज करेक्ट और नॉट, है ना? So in a regression, if you are using a regression based machine learning models, then there are set of some matrices that you have to calculate, and on the basis of those, on the basis of values of those matrices, you can easily say that whether your model is predicting correctly or not. तो वो कौन कौन से मैट्राइसेस रहेंगे वो हमें देखना है, विच टेल्स यू द परफॉर्मेंस ऑफ यूर रिग्रेशन बेस्ड मॉडल. समझ में आ रहा है? हेलो यस यस। हेलो. हाँ यस। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नाउ यू हैव रिटन ऑल द कोड्स, सारी चीजें आप लोगों ने देख ली, आपका मॉडल भी प्रिडिक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता तो चलना चाहिए ना कि आपका मॉडल सही से प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. So in राइट। that case, we have some regression matrices or regression performance matrices. By seeing the values of those particular matrices, you can easily tell that whether your model is performing well or not. So उसमें चार चीजें हम लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन बेस्ड एनालिसिस में. In the regression based analysis, the performance of your machine learning model is depend on these errors. So first error that you have to calculate is mean. That one is a mean absolute error. Mean absolute error. Second error value that you have to calculate, that is mean squared error. Third, that is your root mean square error. Fourth value that you have to consider, that is your R2 score. One more is ओके। there, adjusted R2 score. So कल जो मैंने इंटरव्यू दिया है उसने मुझे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R2 स्कोर एंड एडजस्टेड R2 स्कोर, दैट वी विल सी इन डेप्थ. समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हाँ हैं हम लोग? इट्स ओके, अप टू इट्स फाइन। हाँ, तो मतलब अब रिग्रेशन बेस्ड मॉडल है तो उसके तो कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर रहेंगे. राइट। मतलब फॉर एग्जांपल एक डेटा सेट लिया, उसके ऊपर आपने चार मॉडल लगा दिए, एक लीनियर रिग्रेशन लगा दिया, डिसीजन ट्री लगा दिया, देन यू हैव यूज रैंडम फॉरेस्ट, एंड देन यू हैव यूज एडा बूस्ट. सो दिस फोर एल्गोरिथम्स यू हैव अप्लाइड ओवर दैट पर्टिकुलर सेम डेटा सेट, है ना? तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ये चारों में से कौन सा एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो वो जो रहेगा, वो चारों का कंपैरिजन हम लोग ये वाले परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के ऊपर से बता सकते हैं. तो इसमें हमेशा ध्यान में रखना, इसमें देखो, एक है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, सेकंड वन है मीन स्क्वायर एरर, और थर्ड वन है रूट मीन स्क्वायर एरर. अब मुझे मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो या कोई भी मॉडल डिजाइन जब करते हो, तब वहां पे आपको एरर की वैल्यू ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? कम। कम, which means that the model should provide as low as value of your error. So in machine learning also, those model giving a less value of those particular errors,
एंड अब आपने भी बहुत सारे रिग्रेशन बेस्ड एनालिसिस में एक ये कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट किया है एक्स और वाई, और उसमें आर टू स्कोर आपने आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की है। करेक्ट। सो आर टू स्कोर, वो जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए, विच मीन्स दैट आर टू स्कोर जितना ज्यादा रहेगा उसका क्या मतलब हुआ कि उतने डेटा पॉइंट्स को वो कवर अप करते हुए चल रहा है। राइट। राइट ना? मतलब इन मशीन लर्निंग में भी अगर कोई आपको पूछता है कि भाई ये एरर की वैल्यू ज्यादा चाहिए, आर टू स्कोर की वैल्यू ज्यादा चाहिए कम चाहिए क्या चाहिए, सो योर आंसर शुड बी एनी सिस्टम व्हेन एवर वी आर डिजाइनिंग, it is expected to that system should provide as low as error values and as high as R2 score values. So those model providing R2 score value as high as possible and error value less, we can say that this model is performing well. ओके। Is it fine? इट्स फाइन। Okay. So next we have, and as I mentioned that we have seen one a library which is train test split. So this is nothing but your train test split. Let us assume we have this particular data set where we have mileage, years, हाउ मच, मतलब वो जो बाइक है हमारे पास में या जो भी गाड़ी है वो कितने साल पुरानी गाड़ी है, और उसकी ये सेलिंग प्राइस है। तो अभी क्या करना है हमें कि माइलेज कितना है और उसका एज कितना है, ये दो हमारे रहेंगे इनपुट, और ये दोनों की वैल्यू देने के बाद में उस हमें प्रेडिक्ट करना है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा। तो ये डेटा सेट हमारे पास में है, तो हम क्या करेंगे अभी इसमें का 80% डेटा सेट, 80% डेटा सेट we will use to train your model, and then 20% data set we will use for test your model. Why 80 ओके। or why 20 only, है ना? It is up to you, but most preferably what people used to do, if your data set is large, अगर आपका डेटा सेट बहुत लार्ज है तो आप 70% डेटा लेते हो टेस्ट करने, सॉरी ट्रेन करने के लिए, और 30% डेटा लेते हो आप टेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर एज कंपेयर अगर आपका डेटा सेट थोड़ा कम है तो आप क्या कर सकते हो, ये डेटा सेट वेरी भी कर सकते हो, बट इट शुड बी इन रेंज ऑफ मतलब 20 to 30% ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा सेट, और 70 to 80% आपका क्या होना चाहिए, टेस्टिंग डेटा सेट होना चाहिए। करेक्ट। इज इट फाइन? इट्स फाइन फाइन। तो अभी क्या करेंगे, अब हमारे पास में ये पूरा इतना डेटा सेट है, अब ये डेटा सेट में क्या कर, ये डेटा सेट को क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे ट्रेन और टेस्ट में। तो वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस मच डेटा सेट आई हैव यूज टू ट्रेन द मशीन लर्निंग मॉडल, 80% डेटा सेट मैंने ले लिया मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ये रैंडम करेक्ट। लेगा, वो जो लाइब्रेरी रहेगी वो जो डेटा सेट रहेगा उसमें की रैंडम वैल्यूज ले लेगा वो, मतलब ऐसी ओके। प्री डिफाइंड वैल्यूज नहीं रहती, वो रैंडमली ले लेगा कोई भी 80%, 80% डेटा सेट, और जो 20% बचेगा उसको हम लोग यूज करेंगे टेस्टिंग पर्पज के लिए। अब ये जो 20% है, देखा यहाँ पे ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, so this 20% values are completely not seen by your machine learning model. ओके। समझ में आ रहा है? मतलब 80% जो डेटा सेट दिया उसको तो ट्रेन कर दिया, लेकिन ये जो 20% बचा ये अभी मॉडल ने देखा भी नहीं है ये वैल्यू को, तो ये डायरेक्टली आपकी रैंडम वैल्यूज रहेगी। ओके। तो ये जो काम है टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट को डिवाइड करने का जो काम है, दैट फंक्शन is done by this particular library, that is train test split library. ओके। Is it fine? इट्स फाइन। Okay. So बीच बीच में रह रहे के प्रकाश ये हैंग होता है लैपटॉप में। हाँ, इट्स डिपेंड लाइक द अमाउंट ऑफ लोड है। सो द फर्स्ट स्टेप क्या थी प्रकाश हम लोगों की, द फर्स्ट स्टेप वाज टू इंपोर्ट ऑल द इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, है ना? इन सेकंड स्टेप which is most important, me and Sanjit sir almost took 3 months of time period to define a problem statement, ओके। है ना? अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब क्या कि आप आपके मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम से क्या प्रिडिक्ट करवा के लेना चाहते हो। ओके। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस वी हैव इन माई, यू नो अबाउट माई प्रोजेक्ट, इन माई केस वी हैव ईसीएल इंटेंसिटी,
and with respect to every intensity we have concentration, राइट। है ना। तो हम लोगों का बहुत सारा टाइम पीरियड इसी में चला गया है कि हमें हमें प्रिडिक्शन क्या करना है, हमें इंटेंसिटी का प्रिडिक्शन करना है या कॉन्सेंट्रेशन का प्रिडिक्ट करना है ना। लेकिन राइट। अब देखो अब जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रकाश, तब क्या करते हैं हम लोग, लाइट इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मतलब हमें क्या मिल रहा राइट। है, इंटेंसिटी मिल रही है ना। और राइट। इंटेंसिटी की वैल्यू के ऊपर आप लोग फिर क्या करते हो, बताते हो कि मतलब फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते तब हम क्या करते हैं कि 0.1 मिली मोलर का कॉन्सेंट्रेशन लिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। और उसके हिसाब से आपने इसेल इंटेंसिटी कैलकुलेट की। फिर 0.2 मिली मोलर का कॉन्सेंट्रेशन लिया, अगेन इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट की, है ना। और फिर आप क्या करते हो लैब में, आप में लैब में ग्राफ प्लॉट करते हो जहां पे आप पे यहाँ पे रहेगा कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे रहेगी आपकी ईसीएल इंटेंसिटी की वैल्यू, और आपको कुछ राइट। इस तरह से लीनियर रिग्रेशन ग्राफ मिलेगा। सो दिस इज द लैब बेस्ड अप्रोच, करेक्ट। करेक्ट। लेकिन अब हमें क्या करना है, प्रिडिक्शन तो हमें कॉन्सेंट्रेशन का करना है, क्योंकि जब कोई पर्सन आपका डिवाइस यूज करेगा, है ना, तो उसको थोड़ी लेना हम्म। देना इंटेंसिटी क्या है और क्या है, उसको सिर्फ चाहिए कि उसके बॉडी में हाउ मच ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ही इज हैविंग, करेक्ट। राइट। सो राइट। व्हेन ऑन रियल फील्ड व्हेन यू परफॉर्म, है ना, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, दैट टाइम कॉन्सेंट्रेशन तो अननोन रहेगा, ब्लड सैंपल में राइट। कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो थोड़ी हमें पता है। लेकिन राइट। जो आंखों से दिखेगा, नेकेड आई से जो आउटपुट दिखेगा हमें, दैट आउटपुट इज नथिंग बट योर इंटेंसिटी वैल्यू, इंटेंसिटी वैल्यू। करेक्ट। करेक्ट। तो जब आप रियल टाइम में एक्सपेरिमेंट करते हो तो रियल टाइम का सिनेरियो क्या रहता है कि यू हैव योर एक्स इज नथिंग बट योर व्हाट, देन इंटेंसिटी वैल्यू बेसिकली। इंटेंसिटी वैल्यू, और डिपेंडेंट क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, डिपेंडेंट हो जाएगा तुम्हारा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी यही हमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि व्हाट यू वांट टू प्रिडिक्ट from your machine ओके। learning algorithm. So in that case, your intensity x is nothing but your what? Y equals to mx plus c. So x is nothing but your independent variable, correct? राइट। Y is nothing but your dependent variable, correct? करेक्ट। Now the next step, matlab step number 2 is that you have to define your x and y. So in that case, your dependent variable should be your concentration, and your independent variable should be your intensity. Is it fine? इट्स फाइन। So next step is very important and which is very crucial, that you have to define your x and y, that is independent and dependent variable. Is it fine? इट्स फाइन। Then the third step is data gathering. Now you have defined what will be your x and what will be your y. After that you have to gather the data. मतलब आपको अब ये जो डेटा है ये एक एक्सेल शीट में लेना पड़ेगा या सीएसवी फाइल में लेना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट डेटा गैदरिंग, करेक्ट। है ना। इफ यू हैव अ सीएसवी फाइल, अगर सीएसवी फाइल आपके पास है तो सीएसवी फाइल आपको रीड करना, माइट बी यू हैव गॉन थ्रू द पांडास लेक्चर, यस सो यस यस। देन, है ना, तो सीएसवी फाइल रीड करने के लिए आपको यहाँ पे रीड सीएसवी एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा, एंड इफ यू हैव एक्सेल फाइल तो देन डीएफ डॉट एक्सेल आपको यूज करना पड़ेगा, दैट वी विल सी इन डिटेल while we will go through the coding. I will let you know about all those things. So the next thing is that the first step is your import important libraries. Second thing is that you should be able to define your x and y. The third important step, which would be data gathering. And then we have a exploratory, this step is very important, exploratory data analysis, which is also called as feature engineering. दो मतलब हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें तो वेल स्ट्रक्चर डेटा रहता है ना, मतलब हमें पता रहता है कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से किए हैं और रिजल्ट हम लोगों के पास में कैसा लिया है, तो उसको कहते हैं वेल स्ट्रक्चर डेटा। बट रियल टाइम जो भी सिनेरियो रहते हैं वर्ल्ड में, वहां पे आपको स्ट्रक्चर डेटा नहीं मिलेगा, वहां पे पूरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहेगा, तो उसका क्लीनिंग आपको करना पड़ेगा सबसे पहले, बिकॉज मॉडल को आप वो डायरेक्टली डेटा नहीं शेयर कर सकते। सो वेन यू गेट अ रियल वर्ड
data, that data is a very unstructured data. So first of all, you have to apply or you have to use exploratory data analysis where you have to get the information about that data. मतलब वो डेटा में मिसिंग वैल्यूज है या नहीं है, मिसिंग वैल्यूज है तो फिर उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है या नहीं रिप्लेस करना है, फिर उसमें कैटेगरिकल डेटा है या किस तरह का डेटा है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी जो चीजें रहती है, ये सारी की सारी आपकी आती है फीचर इंजीनियरिंग में, ये हम लोग देखेंगे जैसा हम लोग प्रोजेक्ट, मतलब जिस जैसा जैसा हम लोग सामने कोडिंग देखेंगे, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग about the exploratory data analysis. But whatever the project or whatever the paper we have published, in that we never use this exploratory data analysis. This part we Okay. have not used because our data was structured. Then feature selections, that is again important one. Feature selections means, for example, you now the paper that we have published, कमलेश सर पेपर, देयर Hmm. वी हैव डिफरेंट इनपुट्स ना, वहां पे बहुत सारे इनपुट्स थे Right. हमारे पास में। Correct. वहां पे क्या Correct. था कि कैंटिलीवर की हाइट थी, उसके बाद में उसकी थिकनेस थी, उसकी लेंथ थी, है ना। Hmm. उसके बाद में और आउटपुट में क्या करना Material. था हमें, प्रेडिक्शन फ्रीक्वेंसी था और वोल्टेज था, What is that? है ना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फीचर सिलेक्शन करने पड़ेंगे कि ये जब मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट यू वांट टू प्रिडिक्ट द फ्रीक्वेंसी, सो Mhm. दैट टाइम यू हैव टू ड्रॉप दिस वोल्टेज वैल्यू। मतलब ऐसा Okay. साइमल्टेनियसली प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे तुम, फ्रीक्वेंसी का भी और वोल्टेज का भी। एट अ Okay. टाइम यू हैव टू प्रिडिक्ट फ्रीक्वेंसी और यू हैव टू प्रिडिक्ट वोल्टेज। Okay. सो दिस इज कॉल्ड मतलब एज अ फीचर सिलेक्शन। देख यहाँ okay. पे So यहाँ पे input. यहाँ Okay. यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, वेन एवर यू आर टॉकिंग विद एनी डेटा साइंटिस्ट, ही विल यूज वन वन टर्म वेरी वेरी ऑफनली, दैट इज फीचर। फीचर मीन्स Mhm. व्हाट प्रकाश, दिस इज Mhm. योर एक्स, फॉर एग्जाम्पल दिस these are your columns and these are your rows. So columns are nothing but your features Okay. and these are nothing, features मतलब क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा एक्स हुआ, यहाँ पे रहेगा फॉर एग्जाम्पल सीजीपीए, यहाँ पे रहेगा आईक्यू, यहाँ पे रहेगी हाइट वो बच्चे की, है ना, यहाँ पे रहेगा Mhm. वेट और यहाँ पे उसका रहेगा कि उसका प्लेसमेंट हुआ या नहीं। सो दीज आर ऑल नथिंग बट योर कॉलम्स वैल्यू, कॉलम्स वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड एज अ फीचर्स, Okay. है ना। तो ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूजन, ये फीचर फीचर क्या है, बिकॉज आई टुक ऑलमोस्ट 1.5 months टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, ये फीचर मतलब क्या है भाई। तो फीचर मतलब ये कॉलम का वैल्यू रहता है, एंड देन Okay. ये जो रो रहेगी उसको कभी कभी इंडेक्स भी बोलते हैं। सो दिस Yes, रो yes. आर Row नथिंग बट, row हाँ index हाँ voltage. Correct. 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 हाँ, तो ये रो वैल्यूज को क्या है, ये रो वैल्यूज रहेंगे फिर, ये फीचर्स की विथ रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन में, मतलब ये रो वैल्यूज रहेंगे, ये फीचर्स की यहाँ पे वन जो भी रहेगा वो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ध्यान में ये रखना कि these आर नथिंग बट कॉलम्स वैल्यू, और कॉलम जो भी रहेगी उसको आप फीचर्स कहोगे। समझ में आ रही है? सो समझ में आ नेक्स्ट गई। स्टेप इज योर फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन मतलब वही एक्स और वाई को डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देर इज वन इंस्ट्रक्शन इन पांडा, दैट इज ड्रॉप। Yes. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान ध्यान देना, अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी मुझे क्या करना है प्रकाश, एक्स डिफाइन करना है। अब मेरे Yes. पास में इसेल इंटेंसिटी है और ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है। Correct. So out of these two, what will be your, which one is your dependent variable and which one is your independent variable? First of all, just let me know what x stands for. x का क्या मतलब है भाई, ये x मतलब क्या है, सीधा ध्यान में रखना, y equals to mx plus c. So x is nothing but your dependent, independent variable. Independent. अब यहाँ पे मुझे प्रिडिक्शन किस चीज का करना है, Friction glucose concentration with respect to this ग्लूकोज ethyl entity. कॉन्सेंट्रेशन का करना है। मतलब क्या करना है कि मेरा मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ये मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। Yes. तो मेरा y क्या आना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए, Concentration. Correct. x क्या आना चाहिए, मेरा इंटेंसिटी आनी चाहिए। यस Correct. और नो, Yes. Correct. है ना। तो मैं x जब डिफाइन करूंगा तब मैं क्या करूंगा, ये df मतलब डेटा फ्रेम है, ड्रॉप। अब x में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं प्रकाश, तो x का क्या मतलब हुआ फिर, अब x मतलब है मेरा
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल। है ना। अब ये है मेरे पास में डेटा सेट, इसमें से मुझे क्या ड्रॉप करना पड़ेगा तब जाके मुझे एक्स मिलेगा, Okay, so you have to drop like the glucose concentration. है ना। अब यहाँ पे अगर तूने ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप कर दिया, मतलब ये डेटा सेट में से अभी यहाँ पे ग्लूकोज को हटा दिया, Hmm. तो बचा क्या तेरे पास में, इसील इंटेंसिटी। Intensity. Okay. सो योर एक्स विल बी योर इसील इंटेंसिटी, दैट्स ऑल। Okay. Basically, X we want, so we are dropping because it's like a complete data है. डेटा से वो तो तेरे पास में पूरा हाँ, एक पूरा कंप्लीट ही डेटा है. सेट रहेगा ना, Okay, okay. है ना। तो उसमें से हमें Understood. अभी क्या चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए, तो एक्स क्या है मेरा, X मेरा independent. X is nothing but my initial intensity. इंटेंसिटी। तो मुझे क्या ड्रॉप करना पड़ेगा, ग्लूकोज को ड्रॉप करना पड़ेगा। और Okay. y क्या लिखूंगा, y क्या लिखूंगा मैं, y मतलब सीधा सीधा मेरा y मतलब क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर ग्लूकोज, तो यहाँ पे Glucose. ग्लूकोज लिखा, Okay. दैट्स ऑल। Basically, here selecting X and Y axis, मतलब यस dependent यस, and करेक्ट independent variable. करेक्ट। So that is the important means you should be in that mode, और आप वो फेज में, मतलब you should be capable to understand that which feature you want to drop and which you want to retain, so that Okay. you can clearly define your x and y. Understood. Understood. Got it? When we see some examples, again that will be clear. Is it fine? Yeah, up to you, it's fine. So पहला स्टेप क्या था हम लोगों का, पहला स्टेप था इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को लाना। दूसरा स्टेप था हमारा एक्स और वाई डिफाइन करना, मतलब हमें पता रहना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि एक्स क्या रहेगा, वाई क्या रहेगा, तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। थर्ड स्टेप था हमारा ईडीए, दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, है ना। मतलब डेटा से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना, जैसा कि उसमें कोई नल वैल्यू है या ब्लैंक Right. स्पेसेस है, या कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मिसिंग वैल्यूज है, वो सारी चीजें कहाँ पे आएगी, थर्ड स्टेप में आएगी, फीचर इंजीनियरिंग में आएगी। देन द नेक्स्ट स्टेप इज फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन में क्या किया था हम लोगों ने, एक्स और वाई को डिफाइन करना। अब तुमने एक्स और वाई को डिफाइन कर दिया, अब क्या है, जो डेटा सेट है, व्हाट एवर द डेटा सेट दैट यू आर हैविंग, अब उसको क्या करना पड़ेगा प्रकाश, फिर हमें मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, Train करना पड़ेगा. है ना। सो दैट फॉर दैट पर्पज यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी विच यू हैव ऑलरेडी इंपोर्टेड फ्रॉम sklearn, दैट इज ट्रेन Okay. टेस्ट स्प्लिट। अब समझ ले यहाँ पे, हाँ। अब क्या रहता है ना, ये जो रहेगी तुम्हारी, ये जो लाइब्रेरी रहेगी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है यहाँ पे मैंने जो लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या 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 डिफाइन करता है। Basically, here you can see here X and Y both axes are there. S size is like a 0.2. So just a minute. So this particular library returns four different values. Please try to understand my statement. Okay. This particular library returns four different values. Which are the four different values? X train. X, Y. Okay. No. X train, Yeah. Okay. X test, X test. Y train, Okay. or Y test, which will be equals to train, test, split. Then you have to mention your X value, then Y value. Then यहाँ पे लिखा है इसने टेस्ट साइज, which will be equals to 0.2, which refers that this 0.2 refers that your test data set will be equals to 20% and your train data set will be equals to your 80%. Okay. If you mention here your this particular value is 0.3, which reflects that your test data set size is 30% and your training data set size is 70%. Percent. Is it fine? Yeah, it's fine. Then the important again random state, यहाँ पे लिखा है एनी इंटीजर वैल्यू। अब ये एनी इंटीजर वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रकाश। देखो अब क्या किया तूने, मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन कर दिया, सब कुछ सब फीड कर दिया, मतलब सारी चीजें हो गई और प्रेडिक्शन भी कर रहा है तू। अब क्या होगा,
मान के चल, अब तूने वो सारा कोड सेकंड टाइम वापस रन किया, तो सेकंड ओके टाइप जब आप, हाँ सेकंड टाइप जब आप वापस से उसको रन करोगे ना, तो क्या होगा, इफ यू डोंट यूज दिस रैंडम स्टेट, अगर आपने ये रैंडम स्टेट नहीं किया है तो क्या होगा, एवरी टाइम यूर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट विल गोइंग टू चेंज। ओके क्या होगा, इफ यू डोंट यूज दिस रैंडम स्टेट फंक्शन, देन व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ टाइम्स यू रन यूर code, that many number of times your training and testing data set is going to be changed. अब हर बार अगर तुम्हारा ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा से चेंज होते रहेगा तो उससे क्या होगा, यूर मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर आपके मॉडल का काफी इफेक्ट पड़ेगा। सो टू अवॉइड दिस वी शुड यूज दिस रैंडम स्टेट, और इसका यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू दे दो, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, दैट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग। Just you ओके have to use any integer value which confirms that when you run your code multiple number of time, same training and same testing data set you will get। उससे क्या होगा कि सेम ट्रेनिंग रहेगी तो आपका जो परफॉर्मेंस वैल्यूज रहेंगी, आप परफॉर्मेंस कैसे, मतलब जो जो आपके एरर की वैल्यू रहेगी, R2 स्कोर की वैल्यू रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा कि हर बार अगर ट्रेनिंग सेट अलग अलग लेते रहोगे तो मॉडल का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, आपका चेंज होते रहेगा। परफॉर्मेंस चेंज होना मतलब एरर की वैल्यू चेंज होती रहेगी और आपका R2 स्कोर की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। सो टू अवॉइड दैट यू शुड यूज दिस रैंडम स्टेट फंक्शन। इज इट फाइन? इट्स फाइन सो द थिंग इज दैट, क्या कहा मैंने, ये जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी है, मतलब ये जो हम लोगों ने इतना यूज किया है, ये क्या करेगा, 4 वैल्यूज आपको रिटर्न करेगा। 4 वैल्यूज दैट पर्टिकुलर फंक्शन विल रिटर्न। कौन कौन से 4 वैल्यूज है ये, और इसका सीक्वेंस प्रकाश हमेशा यही रहेगा, ओके सीक्वेंस शुड नॉट बी चेंज। ओके इट विल रिटर्न एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, यू कैन चेक इट। हम लोग जब कोडिंग ओके करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से हमें ये 4 वैल्यू रिटर्न करता है। समझ में आ रहा है? ओके फाइन या तो ये फाइन हाँ, तो पहला क्या किया हमने, इंपोर्ट की लाइब्रेरीज, दूसरा क्या किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, थर्ड वन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, फोर्थ वन क्या, फिर क्या किया हमने, ट्रेन और टेस्ट, मतलब फोर्थ किया हमने फीचर, सॉरी फीचर सिलेक्शन, जहाँ पे एक्स और वाई को डिफाइन किया आपने। उसके बाद में आपने क्या किया, फिर 6 स्टेप में अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया यहाँ पे ट्रेन किया यूजिंग दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी। अब इसके बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आफ्टर दैट, अब तुमने तो मॉडल, मतलब अब क्या किया, यहां तक कि तुमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ओके है ना। टिल दैट स्टेप नंबर 6 यू हैव डिवाइडेड योर ट्रेनिंग एज वेल एज योर टेस्टिंग डेटा सेट। अब क्या करना है, मुझे लीनियर रिग्रेशन यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल राइट फॉर द प्रिडिक्शन पर्पज आई हैव टू यूज अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो उसका आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके अब इंस्टेंस कैसे क्रिएट करोगे, दिस इज अ वेरिएबल, इन फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ आई टोल्ड यू व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल। यस लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल ऑल दिस थिंग्स हाँ तो ये, हाँ तो ये एक वेरिएबल यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया, कोई भी नाम आप दे सकते हो, मैंने यस सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे ELR मॉडल लिख दिया। और ये आपका लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन है, ये इंस्टेंस है जो आपने क्रिएट किया है ना। ये कहाँ से आएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको लीनियर रिग्रेशन डाल के छोड़ देना है, क्योंकि ऑलरेडी इसके रिलेटेड जो लाइब्रेरी है वो आपने इनिशियल ही इंपोर्ट कर ली ओके है ना। मैंने बोला था ना वो फर्स्ट स्टेप इंपोर्ट लाइब्रेरीज में लीनियर रिग्रेशन हाँ की, हाँ तो वो एस, करेक्ट हाँ तो वहां से आपने पहले ही इसके रिलेटेड लाइब्रेरी कर लिए, तो आपको यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन का ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? या सो द फर्स्ट थिंग इन सेवंथ नंबर स्टेट में क्या है, अपने को इंस्टेंस क्रिएट करना है। अब एक बार आपका इंस्टेंस क्रिएट हो गया, मतलब मशीन लर्निंग का लीनियर रिग्रेशन का मॉडल आ गया, अब क्या करना है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट से उसको फिट करना है। ओके अब जो ट्रेन और टेस्ट डेटा सेट आपने स्प्लिट किया है ना भाई, उसको हाँ फीड भी तो करना पड़ेगा, ट्रेनिंग डेटा सेट से मॉडल को फीड भी तो करना पड़ेगा। तो देन फॉर राइट दैट पर्पज यू हैव वन कमांड और यू कैन से वन फंक्शन, दैट इज डॉट फिट। तो परफेक्ट ये जो वेरिएबल आपने लिया था, यहाँ पे क्या लोगे, ELR मॉडल, है ना, डॉट फिट नाम का फंक्शन यूज करोगे और यहाँ पे दोगे एक्स ट्रेन से उसको फिट करना है,
क्योंकि ट्रेनिंग डेटा सेट और वाई ट्रेन से क्या करना है, उसको फिट करना है. नाउ योर मॉडल इज फिट विथ योर ट्रेनिंग डेटा सेट एंड नाउ योर मॉडल इज रेडी फॉर द प्रिडिक्शन पर्पज. ओके. समझ में आ रहा है? मॉडल को हाँ. ट्रेन किया, टेस्ट और टेस्ट फिट करके, उसके बाद में एक इंस्टेंस लिया. ये हर मतलब ये जो स्टेप्स है, ये हर मशीन लर्निंग के मॉडल में आपको यूज करना पड़ेगा. तो एक इंस्टेंस क्रिएट किया यहाँ पे. इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद में वो इंस्टेंस को लेके हमने वो मॉडल को अब क्या कर दिया, फिट कर दिया ट्रेनिंग डेटा सेट यूज करके. एंड वंस यू यू फिट योर मॉडल, देन योर मॉडल इज नाउ रेडी फॉर द प्रिडिक्शन पर्पज. फिर क्या करना पड़ेगा नाउ, मॉडल इवेल्युएशन मतलब प्रिडिक्शन. देन अगेन यू हैव टू टेक वन वेरिएबल. लेट अस एज्यूम आई हैव टेक वन वेरिएबल दैट इज वाई प्रेडिक्ट, विच विल बी इक्वल्स टू, एक इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था एलआर डॉट मॉडल का प्रकाश. अब मुझे क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है. तो यहाँ पे मैं एक डॉट प्रेडिक्ट करके एक फंक्शन यूज करूंगा. और अब क्या प्रेडिक्ट करना है मुझे, टेस्ट डेटा सेट एक्स टेस्ट, है ना, एंड वाई और टेस्ट. क्या रहेगा, वाई टेस्ट. सो नाउ यू विल गेट योर प्रेडिक्शन हियर. Yeah, it's समझ up में आ to रहा eight है? span. Yeah, up to eight span. So these are the 8 basic steps that you need to follow while dealing with data science project. Okay, समझ में आ I'm रहा है ये? understanding. Yeah. समझ में आया. समझ में आया नहीं क्या चल रहा है समझ तो? में आया, समझ में आया. Yeah. तो यही स्टेप्स हमें सारी जगह पे फॉलो करनी है. And for all algorithm as well. सब एल्गोरिदम के. अब यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन है, तो वहां पे अब डिसीजन ट्री है, तो वहां पे सिर्फ डिसीजन ट्री का आएगा, रैंडम फॉरेस्ट का आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, वो हम लोग देखेंगे. Okay. And based on that, the prediction will be changing. हाँ, It will be प्रेडिक्शन फिर changed. उस हिसाब से, हाँ प्रेडिक्शन उस हिसाब से चेंज होगा. Okay. बाकी यहाँ तक सारी चीजें आपको सेम ही करनी पड़ेगी. अच्छा. Yeah, up to eight span. Okay. Now Okay. these are nothing. These are all the 8 steps that you should keep in mind while dealing with the data science project. But now the next important point, whenever you are dealing with a regression based analysis, Okay. as I mentioned previously as well, कि you should have some parameters in your hand. Based on that, you should be able to tell which model is performing best. Yes. So those performance matrices, or in regression based analysis, we have some performance matrices. On the basis of those matrices, you will be able to let people know कि this model is performing well. So अभी वो हमें देखना है. For example, so these are the important performance matrices that we are having. So the first one is mean absolute error. अब प्रकाश, ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या रहती है? जैसा कि ये है, दीज आर आवर डेटा पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, ये हम लोगों के डेटा पॉइंट्स है, और जो मॉडल आप लोगों ने यूज किया है, ये मॉडल ने ये लाइन खींच के दी है यहाँ पे. Okay. ओके ना? सो दिस इज द प्रिडिक्शन. ये यहाँ पे आप बोल सकते हो, दिस इज द प्रिडिक्शन डन बाय योर मॉडल, बट दीज आर नथिंग बट योर एक्चुअल वैल्यूज. इज इट फाइन? It's fine. अब क्या हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू इज नथिंग बट योर मीन एब्सोल्यूट एरर. मतलब Okay. ये देख, अब ये यहाँ पे देख, जस्ट मिनट. ये क्या है? अब ये वाला जो पॉइंट, है, इसकी एक्चुअल वैल्यू तो ये Yes. है ना, लेकिन प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी है प्रकाश? ये वाली. ये वाली. सो दिस डिफरेंस इज नथिंग बट योर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर. Okay. इसको अगर E1 लोगे तो उसी तरह से ये भी एक एरर रहेगा. इसको E2 लोगे आप, है ना, इसको E3 लोगे, है ना. तो इफ यू एड ऑल दोज एरर, E1 प्लस E2 प्लस E3, और इसका एवरेज अगर लो लोगे, है ना, n डिवाइडेड बाय n, सो दैट इज नथिंग बट योर मीन एब्सोल्यूट एरर. Okay. समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा है ना, वाई आई माइनस वाई आई हैट. सो इट्स एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन योर प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल, जो भी एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड. Okay.
हम्म हम्म समझ में आ रहा है? हाँ। हम्म अब मुझे अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि व्हेन यू हैव दिस मीन एब्सोल्यूट एरर, what are its advantages and what are its disadvantages, because the second we have mean square error, correct? राइट। तो ऑब्वियसली इसके कुछ डिसएडवांटेज रहे होंगे, इसलिए लोगों ने मीन स्क्वायर एरर के ऊपर जाना पड़ा। ऑफ तो कोर्स। है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर में? इसके तो एडवांटेज ये है कि इट इज अ रोबस्ट इन हैंडलिंग आउटलायर्स। आउटलायर्स हम कंसेप्ट देखेंगे क्या है। इसका एक एडवांटेज अच्छा है कि अब देखो, ये जब जब भी तुम ये मैट्रिसेस कैलकुलेट करोगे प्रकाश, तो इसका तो कुछ नंबर आएगा, एक 10 20, राइट। फॉर एग्जांपल मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है इसका कुछ नंबर आएगा, समझ ले लिया 4000। अब भाई तुम्हें कैसे पता ये 4000 नंबर ज्यादा है कम है, या एरर बहुत ज्यादा हो गई कम हो गई, है ना? राइट। तो इसका एडवांटेज ये है कि द मीन एब्सोल्यूट एरर का जो यूनिट है, the unit of this mean absolute error is same as that of your output column। जैसा कि अभी हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन है आउटपुट कॉलम, दैट इज इन मिलीमोलर, यस। और मेरी मीन एब्सोल्यूट एरर एम ए ई की वैल्यू अगर आई 0.4, ओके। विच मीन्स दैट दिस 0.4 इज नथिंग बट मिलीमोलर, मिलीमोलर कौन? ओके। है ना? सो एरर इज 0.4 मिलीमोलर। इतना एरर हमारा दे रहा है, मतलब देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड, और वो जो डिफरेंस है वो इतना है 0.4 मिलीमोलर का। ओके। अगर मेरे पास में फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीजीपीए है और यहाँ पे लैक पर एनम एलपीए है ना? तो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर मान के चलो 2.5 आया, विच मीन्स दैट दिस इज योर लैक पर एनम, यूनिट इसका ये है। बेसिकली, हाँ, तो बेसिकली like in our graph also we used to plot the standard error, so kind of things. हाँ So हाँ 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 हाँ, kind of सिमिलर। things, it's like a mean absolute error. लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो है ना, इट इज नॉट, वी कांट कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर एट टी इक्वल्स टू 0। ओके। अब मुझे पता नहीं है ये क्या है, जस्ट मैंने इंटरव्यू के लिए पढ़ा था प्रकाश है कि इसका ओके, डिसएडवांटेज क्या है। सो हाँ, सो दिस दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टी इक्वल्स टू 0। So to avoid this, people have moved towards a mean square error। ओके। मीन स्क्वायर एरर में क्या किया, ये जो मॉड एक्चुअली यहाँ पे क्या करते थे, ये देखिए यहाँ पे ये जो मॉड फंक्शन यूज किया ना हमने, हाँ। दिस मॉड और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टी इक्वल्स टू 0। ओके। तो वो हटाने के लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, मीन स्क्वायर एरर ले लिया। अब इसमें क्या किया, सिर्फ ये मॉड को हमने रिप्लेस कर दिया ब्रैकेट से और उसका स्क्वायर ले लिया, दैट्स ऑल, ओके। है ना? लेकिन इसका एक एडवांटेज देखो, इसका एडवांटेज ये है, ये डिफरेंशिएबल तो है एट टी इक्वल्स टू 0, ओके। लेकिन इसका इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट इज वेरी हार्ड टू इंटरप्रिएट। हार्ड टू इंटरप्रिएट क्यों है? क्योंकि इसका जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर मीन स्क्वेयर एरर इज स्क्वेयर ऑफ योर आउटपुट कॉलम। जैसा कि ओके। मैंने हाँ। कहा अभी, कॉन्सेंट्रेशन है हमारा आउटपुट कॉलम, है ना? कॉन्सेंट्रेशन है हम्म। दैट इज इन मिलीमोलर। तो मेरा मीन स्क्वेयर्ड एरर अगर 0.5 आया, तो इसका स्क्वेयर जो रहेगा वो रहेगा आपका यूनिट इन मिलीमोलर, ओके। है ना? अब हम्म। 0.5 तो कम वैल्यू है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, सीजीपीए और लैख पर एनम, है ना? और मेरा हम्म। मीन स्क्वेयर्ड एरर आया है 2.5, है ना? तो हम्म। मीन स्क्वेयर एरर क्या रहेगा, जो आउटपुट कॉलम रहेगा आपका, उसका ये क्या रहेगा, स्क्वेयर रहेगा भाई। ओके। अब ये नंबर लाख में आएगा प्रकाश, तो करेक्ट। इतना बड़ा अगर नंबर, अगर ये आएगा 25,000, है ना, 30,000, ऐसे नंबर आते ही ये 40,000,
तो जो इंटरप्रिएटर रहेगा, जो इंटरप्रिएट करने वाला रहेगा, वो तो थोड़ा इसको इंटरप्रिएट नहीं कर पाएगा, भाई ये इतना नंबर क्यों आ रहा राइट। है ना। सेम क्वेश्चन इंटरव्यू, सेम क्वेश्चन दैट वन ऑफ द रिव्यूअर इन, जो हमने कमलेश सर का पेपर पब्लिश किया ना, उसने ये बोला था कि भाई तुम्हारी ये मीन एब्सोल्यूट एरर की, उसके बाद में R2 स्कोर की और मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू तो बहुत कम आ रही है, लेकिन हम्म। रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम आ रही है, लेकिन ये मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि वहां पे जो इसका जो यूनिट था, वो मतलब हमने किया किया था, फ्रीक्वेंसी को प्रिडिक्ट किया था ना। राइट। तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी हर्ट्ज में रहेगी, राइट। है ना। अब आई समझ ले 10 हर्ट्ज, या उनकी फ्रीक्वेंसी आई थी 500 हर्ट्ज फॉर एग्जाम्पल, तो 500 हर्ट्ज का स्क्वायर कितना हुआ प्रकाश? वो वो नंबर तो बहुत बड़ा जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, देन इट वर्क है आउट ना। क्रिएट। हाँ, तो इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रिएट, सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ मीन स्क्वायर एरर, बट इट इज रोबस्ट टू आउटलायर, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लैख पर एनम का ये, तो उसको रिड्यूस करने के लिए फिर हम क्या लेके आए, रूट मीन स्क्वायर एरर। अब रूट मीन स्क्वायर मतलब क्या है प्रकाश? ये जो वैल्यू है, इसको रूट में डाल दो सीधा सीधा, दैट्स ऑल। समझ ओके। में आ रही है ये चीज? हाँ, समझ में आ गया। तो बेसिकली वो स्क्वायर कट जाएगा, देन इट विल बी लाइक स्क्वायर सिंपल बेसिकली। हाँ। सिंपल रहेगा। हाँ, सिंपल रहेगा। करेक्ट। सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थ्री पर्टिकुलर एरर्स। मीन एब्सोल्यूट एरर के कुछ एडवांटेज है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। मीन स्क्वायर एरर के कुछ एडवांटेज है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फिर हम उसके लिए लेके आए। और लास्ट पैरामीटर हम लोगों के पास में है इसका R2 स्कोर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन, कोइफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और ओके। गुडनेस ऑफ फिट, और गुडनेस ऑफ फिट। तो ये तो पता ही है प्रकाश देखो कि R2 स्कोर की वैल्यू एज हाई एज पॉसिबल हमें चाहिए, है ना। और R2 स्कोर की, अरे यार, और R2 स्कोर की वैल्यू इफ इज लो, देन व्हाट वी कैन से कि गुड। गुड फिट नहीं है भाई, है ना। गुड आपका फिट नहीं, मॉडल जो है, हाँ, मॉडल नहीं राइट। मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। इसका शायद मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, ओके। हाँ, तो एक बार जस्ट देख लेना उसको। बट ठीक है, बट ओके प्रैक्टिकली, फाइन। बट प्रैक्टिकली जस्ट यू शुड रिमेम्बर दैट कि व्हाट इट मींस दैट कि इट्स अ परफॉर्मेंस, क्या बोलते हैं इसको, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस है ये, या उसको कोएफिशिएंट ऑफ जो भी डिटर्मिनेशन गुडनेस ऑफ फिट बोलते हैं, जो कि दिखाता है हाउ हाउ योर मॉडल इज परफॉर्मिंग। ओके। ठीक है ना। तो या। और उसके बाद में ये एक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम। हम्म। दिस इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम। ये हम लोग हम्म। देखेंगे जिसमें सिर्फ CGPA और पैकेज की वैल्यू दी है। पैकेज। हाँ, और ये है हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम, है ना, जहाँ पे हमें हम्म। प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करना है, और यहाँ पे आपको इतने सारे इनपुट फीचर्स दिए हुए। ओके। समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा है, मुझे ऐसा हाँ। हाँ, हाँ, तो क्या क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे? मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या है, मतलब वो जो हमने ग्राफ देखा था ये वाला, हाँ, सबसेट ऑफ लाइक। है ना, ये एक बार देख लेना इसको। उसके बाद में रिग्रेशन बेस्ड एनालिसिस क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग मॉडल क्या है, अनसुपरवाइज क्या है, सुपरवाइज। रिग्रेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें देख लेना, है ना। उसके बाद में हमने देखा कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल के एग्जांपल्स, देन द डेटा साइंस प्रोजेक्ट स्टेप्स, which are the राइट। important libraries and steps. Then we have seen how the train test split library works, है ना। देन डिफरेंट स्टेप्स वी हैव सीन, एंड देन रिग्रेशन मैट्रिसेस हमने देखा। क्लासिफिकेशन की भी इसी तरह से मैट्रिसेस है, मतलब ये रिग्रेशन ओके। बेस्ड एनालिसिस अगर है तो ये यूज करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन में ये रहता है प्रकाश, जस्ट जस्ट अ मिनट, अरे यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड अगर मॉडल है तो उसके पैरामीटर्स अलग रहेंगे। तो क्लासिफिकेशन में क्या करना है हमें, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्यूरेसी of the model. ओके। Then again, you have to find out something called as confusion matrix. ओके। ये भी मैं हम लोग देखेंगे जब क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम देखेंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स,
है ना। उसके बाद में एक रहता है प्रिसीजन, उसके बाद में रहता है रिकॉल, एंड देन फिफ्थ वन इज F1 स्कोर. ओके So based on these five parameters, again you can say which algorithm is performing better, which algorithm मतलब कौन से algorithm का परफॉर्मेंस अच्छा है इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन. लेकिन इन केस ऑफ रिग्रेशन अगर आपको मॉडल का परफॉर्मेंस बताना है तो क्या एरर कौन कौन सी रहेगी? एरर मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन सॉरी मीन स्क्वायर एरर, देन रूट मीन स्क्वायर मीन एरर, स्क्वायर और उसके बाद में आपका रहेगा रूट R2 स्क्वायर। स्कोर, और एक रहेगा एडजस्टेड R2 स्कोर. मैंने वो नहीं लिया है एडजस्टेड R2 स्कोर, लेकिन वो पता होना चाहिए क्या है ओके एडजस्टेड R2 स्कोर. तो मैं इन शॉर्ट को बता देता हूँ कि एडजस्टेड R2 स्कोर क्या रहता है. अब क्या है प्रकाश, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CGPA है ना, और मान के चल कि यहाँ पे उसका IQ लेवल है, और यहाँ पे उसको लैख पर एनम है ना. तो अब ये ट्रेनिंग डेटा सेट से तेरा कुछ R2 वैल्यू आएगी, एक R2 वैल्यू आई 0.9 है ना. R2 ये कुछ तो वैल्यू आएगी तेरी, करेक्ट. अब क्या किया मैंने, एक इसमें एक कॉलम ऐड कर दिया, एक फीचर ऐड कर दिया टेम्परेचर. ओके अब टेम्परेचर का CGPA से IQ से कोई लेना देना है क्या? नहीं इट्स इररिलेवेंट फीचर, करेक्ट ना. यस इट्स इररिलेवेंट फीचर. बट अब क्या होना चाहिए आइडियली, ये इररिलेवेंट फीचर अगर आपने ऐड कर दिया आपके मॉडल में, तो ये R2 स्कोर आइडियली एक तो कम होना चाहिए, या बढ़े है ना, और स्टेबल रहना चाहिए, ओके है ना. आइडियली ये होना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये R2 स्कोर की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. अब टेम्परेचर तो तुम्हारा इररिलेवेंट है फीचर, तो ये तो नहीं होना ओके चाहिए, है ना. सो दैट शुड नॉट बी हैपन. बट इन सम केसेस, है ना, द R2 स्कोर वैल्यू increased, ओके है ना. So to avoid this, people have introduced one concept that is called as एडजस्टेड R2 स्कोर. उसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं है प्रकाश, अभी एक बार देख लेना, है ना. ठीक तो है वो क्या करता है, ऐसे जो इररिलेवेंट जो फीचर्स है उसका कोई भी मतलब उसका क्या कह सकते हैं, उसका कोई भी इफेक्ट ना हो पाए, उसकी वो क्या करता है, मतलब वो मेंटेन करके रखता है. सो दिस इज ओके द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ योर एडजस्टेड R2 स्कोर. ओके फाइन मुझे लगता है कि शायद यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा, देखो ये क्या चल रहा है. या अब तो हियर इट्स फाइन हम्म. तो कैन टर्न ऑफ एक काम कर दे फिर, टर्न यू कैन टर्न मैं ऑफ द कॉल, रिकॉर्डिंग हाँ, अरे ये डायरेक्ट बंद किया तो हो जाएगा क्या प्रकाश? रिकॉर्डिंग तो डायरेक्ट आई थिंक इस पे हो जाती है से गूगल ड्राइव पे एक मिनट, ये मेरा PC बंद पड़ गया, जस्ट मिनट प्रकाश, चार्जिंग लगाता हूँ. शाम लाओ रे.